You're not going with us. Why are you getting ready? Welcome to our channel. You must be wondering why I'm putting a vlog so late. It's because I got injured. I fell from my hoverboard and I got a fracture right over here. So that's why I had rest for 1 month. Now I'm back to normal and today I'm going to my basketball classes. I was going to basketball classes before I was injured. So now I have 2 missing classes and I'm gonna attend them today, and the next one I'm going to do it next week. So let's go. पापा जल्दी चलो, I'm getting late. चलें गुल्लीर? हाँ चलो। पापा पहले तो आप मास्क नहीं पहनते थे, अब क्यों पहन रहे हो? आपको वैक्सीन भी लग चुकी है। भाई वो वैक्सीन तो लग चुकी है, केस दोबारा बढ़ने स्टार्ट हो गया तो इसलिए मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। चला चलें। तो हम पहुंच गए हैं जी। गुलनीर, आर यू रेडी? Yes, and I'm ready for my favorite game, dribble knockout. ड्रिबल नॉकआउट में तो गुलनीर का खौफ चलता है यहाँ पे, बट पता नहीं अब 1 महीने बाद आई है गुलनीर। आज गुलनीर अपना खौफ कंटिन्यू कर पाएगी नहीं कर पाएगी। You bet, I'm better than ever. Let's see. I think the class has already started. Yeah, maybe kids are already here. Let's go. So we started with warm-ups like dribbling with our right hand and our left hand and crossovers. So here we are passing under the leg. So I was already good with under the leg pass. So the coach asked me to do the under the leg dribble. And here it is. So here we are playing follow the leader. Here our coach is the leader and we are following her. How did you find it after so many days? Kind of tiring, but it won't be tiring in dribble knockout. You are just waiting for dribble knockout? Okay. Are you going back now? Yes. I think I'm going to drink more water.
So here we are playing red light, green light. When it's red light, we have to completely stop, but when it's yellow light, you have to keep dribbling, but you have to not walk, and when it's green light, you have to dribble and walk. So this game helps you to keep control on yourself. So here we are practicing shooting first a couple of times. I could not make it, but my next attempts were very successful. Not, because the teacher just said next is sharks and minnows. तो टीचर को क्या देना कि मेरी फेवरेट गेम ड्रिपलिंग नॉकआउट है, वही करवाओ आज। फिर क्या होगा क्या? So here we are playing sharks and minnows. In this game, one person is a shark and the others are minnows. And if the shark touches the minnow, it becomes a seaweed. And I was a shark first, and I freezed everybody. ऐसा गुल्लीर का इतना खौफ है कि गो कहने के बाद भी ड्रिपलिंग स्टार्ट नहीं कर रहे लोग। Why did we not play dribble knockout? गुल्लीर थोड़ा सोच के आई थी आज ट्रिपल नॉट आउट खेलेंगे और उसके अंदर गुल्लीर अपनी पावर दिखाएगी कि अपनी एक्सपर्टाइज, और आज उन्होंने खेला ही नहीं। आर यू सैड? Kind of. You can practice with me. We don't have 2 balls. Yeah, of course. We can borrow one from your friend. Okay. हॉट एयर बैलून दिख रहा है क्या पीछे? हाँ, हम उस पे गए भी हैं। तो ये पीछे हॉट एयर बैलून है जी। ये मतलब जिसके अंदर बंदे जाते हैं और वो इनको ऊपर लेके जाता है हॉट एयर बैलून बंदों को, और उसमें फिर आपको पूरी सिटी दिखाई देती है। हम गए थे एक बार शुरू में, इतना वन टाइम ठीक है बट मतलब बकवास सा ही है वैसे तो। तेरे को अच्छा लगा था? हाँ। है क्या अच्छा लगा था? हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, राम राम जी। आज काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं। तो गुलनीर ने जैसे आपको बताया, गुलनीर को थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन अब ये फुली रिकवर हो चुकी है और अपना बैक टू नॉर्मल आ गया। तो इसलिए आज अपनी बास्केटबॉल की क्लास में आई थी, आपने देखा ही है। और बास्केटबॉल इसकी आज 3rd क्लास थी, एक क्लास और बची है और अपना ये बास्केटबॉल सीख रही है। और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये ग्रेट पार्क है। तो ग्रेट पार्क यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें हर स्पोर्ट्स के लिए आपके ग्राउंड्स हैं। लाइक आई थिंक मेरे ख्याल 18 से 20 तो सॉकर के ग्राउंड हैं, टेनिस के भी कोर्ट्स हैं, बास्केटबॉल के भी कोर्ट्स हैं और सारे स्पोर्ट्स के हैं। और सबसे बड़ी बात है ये पब्लिक के लिए ओपन है, पब्लिक के लिए फ्री है। तो अगर आप जैसे अरवाइन जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, रेंट्स काफ़ी हाई हैं और ओवरऑल कैलिफोर्निया में टैक्स भी काफ़ी हाई है। तो जब आप ये सारी एमिनिटीज़ देखते हो कि पब्लिक के लिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा वेल मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पब्लिक के लिए फ्री दिया हुआ है, तो आपको लगता है कि इतना टैक्स भरना और इतना यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, वो सब वर्थ है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट कि आपको पे चुभता नहीं है कि आप इतना टैक्स भर रहे हो और इतना यहाँ रेंट्स भर रहे हो। अब बात करते हैं गुलनीर की बास्केटबॉल या और क्लासेस की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया था कि गुलनीर
जब स्कूल का व्लॉग बनाया था गुलनीर के कि यहाँ पे एजुकेशन तो फ्री है पब्लिक स्कूल्स में, लेकिन उसके अलावा आपको कुछ और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ या पढ़ाई के लिए भी जो कुछ भी करना है वो आपको अपनी क्लासेस लगवानी पड़ती हैं। तो जैसे गुलनीर की हमने बास्केटबॉल की क्लास स्टार्ट करवाई थी, ऐसे ही अब इसकी बास्केटबॉल की क्लास ख़त्म होंगी तो स्विमिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो लाइक दैट इज़ अ गुड थिंग। आप अपने बच्चे को 3-4 जो स्पोर्ट्स की अलग अलग क्लासेस अटेंड करवा के, जैसे जिमनास्टिक की भी हम क्लास ट्राई कर रहे हैं, बट यहाँ जैसे क्लासेस थोड़ा सिस्टमेटिक काम है तो वेट लिस्ट है अभी जिमनास्टिक पे। तो 3-4 क्लासेस आप बच्चों को अटेंड करवाओ, देखो उनके जो कोचेज़ हैं उनसे पूछो, और ख़ुद भी आपको पता लग जाता है बच्चे का किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, बच्चा किस में ज़्यादा अच्छा कर पा रहा है, और फिर आप उसकी पर्सनल एकेडमी या जो भी आप आगे बच्चे को ग्रूम करवाना चाहते हो तो वो करवा सकते हो। और अबाउट क्लासेस, सिटी ऑफ अरवाइन की अपनी एक साइट है जिस पे सारी क्लासेस लिस्टेड होती हैं, जो भी कोचेज़ हैं, अकेडमीज़ हैं, जो भी क्लासेस ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उन्होंने अपनी ऐड डाली होती है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो और वहीं सारी पेमेंट हो जाती है। और सारा सिस्टमेटिक काम है, अपना बढ़िया सिस्टम है। तो जैसे स्कूल्स का सिस्टमेटिक है तो वैसे ही अपनी क्लासेस का भी सिस्टमेटिक काम है। इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स क्लासेस, हर चीज़ की क्लासेस आपको अवेलेबल है। इवन मैंने देखा काफ़ी लोगों ने हिंदी की क्लासेस भी अपनी लगवाई हुई हैं कि जैसे यहाँ रह के बच्चे हिंदी भूल जाते हैं तो इंडियंस ने हिंदी क्लासेस भी एनरोल कराई हैं ताकि बच्चे हिंदी से टच में रहें। गुलनीर तो खैर पंजाबी क्लासेस से भी जाती है, तो गुलनीर देखते हैं। गुलनीर की नेक्स्ट क्लास है बास्केटबॉल की, एक क्लास बची है और उसके बाद फिर इसकी स्विमिंग की है। तो ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, फिर अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे आपको। ओके जी, सत श्री अकाल जी, बाय। So this is the end of our vlog. Hope you like it. Don't forget to give this video a huge thumbs up, click on subscribe button, share this video, and comment down below. Bye bye.